विश्वविद्यालय कुमाऊं जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तब सुयश तब कीर्ति गाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं स्थित है माधुरी माधुरी चरण में शांत शुद्ध पर्यावरण में कर्म निरत वातावरण में प्रसरित विद्यामय हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं शिक्षण शोध सभी विषयों का वैश्विक नव गुंजारित करता देश सकल प्रतिबिंबित होता सर्व ज्ञान द्युतिमय हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो जय विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं 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 My dear students, I welcome all of you and also all the parents who have laid their trust in us to guide and mold their children for coming next 3 to 4 years. I really would have loved to welcome you in our wonderful campuses and all affiliated colleges. But due to this COVID-19, we are doing this orientation program through online mode. If I think back to my early college days, when I myself was a student, those were really challenging days and also the golden days. But at the same time, they molded me as a person that I am today. I must say that I am privileged to be a student of Kumaon University, Nainital. And today, I am here to share my views with the new entrants of this university. As many of you must be knowing that I am also the alumnus of this great university, that is Kumaon University. Dear students, these are the years you will make new friends. You will be provided outstanding education and opportunities. At the same time, you will be challenged to uncover your creative aspect. Today, you all are entering into a new world. Let me very quickly give you a brief
introduction about your university, that is Kumaon University. As you know that Kumaon University, it was established in 1973 and it has a rich educational experience of 47 years. Regarding this university, you may visit to our website, that is www.kunanital.ac.in, and I would like to share with you that our Kumaon University is NAAC A grade accredited university. And if you see in India, there are only few universities, those are A accredited universities. And also I would like to tell you, I would like to inform you that our pharmacy, Department of Pharmacy, achieved 75th rank in NIRF ranking, that is All India ranking. So now you will be eager to know that what is new in Kumaon University. What is special here in Kumaon University? Here in Kumaon University, not only excellent education, but here in Kumaon University, we try to prepare each student with a set of skills to deal with the challenges that come in life. My dear student, this is a new journey of your life and a very, very important part of your life too. This is a very, very crucial time for you. This journey will lead you to achieve your dreams and put you must give 100% to accomplish them. मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस विश्वविद्यालय से मैंने अध्ययन किया, उसी विश्वविद्यालय में मुझे आज सेवा करने एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। आप में से कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होगा, तो कोई स्पोर्ट्स में, कोई म्यूजिक में, कोई डांस में और कोई अन्य क्षेत्र में। यह जरूरी नहीं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें या आप 90%, 95% लाएं। परसेंटेज लाना, अच्छी परसेंटेज लाना, ऑफ कोर्स ये आपका ध्येय है, ये आपका गोल है। लेकिन अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बहुत नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे पाने के लिए आप खूब प्रयास करें। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और सफल इंसान के अलावा एक सफल देश का सेवक बन सकते हैं। जहां पर आप हैं, आप वहीं से शुरुआत करिए। इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कुछ कारणवश उनके जो मार्क्स हैं पिछली कक्षा में बहुत अच्छे नहीं आ पाए होंगे। आप भूल जाएं, आपके जो भी मार्क्स अभी तक आए हैं, चाहे आपके 90% आए हों, चाहे 60% आए हों, चाहे आपके 55% आए हों, वट एवर मार्क्स यू अचीव
by this time. Just forget about it. Start your journey from today. आज से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें. कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो प्रयास नहीं करते हैं और अपना समय गंवा देते हैं, जिसके बाद एक पल सब भविष्य में ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी अगर मेहनत की होती तो आज मैं सफल होता है. आज से कुछ सालों के बाद जब आप लोग यहाँ पे से ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप में से कुछ विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अच्छी पोस्ट पर जाएंगे. उस समय आप देखेंगे कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर किए हैं तो आपके अंदर एक हीन भावना आएगी. तो हम ऐसा क्यों होने दें? अभी से हम अपने आप को तैयार करें भविष्य के लिए. इसलिए अगर जिस काम के बारे में सोचो तो उसे करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि वक्त निकलने में टाइम नहीं लगता और फिर जिंदगी में काश शब्द के सिवाय और कुछ नहीं बचता. साथ ही प्रयत्न नहीं करने का पूरी जिंदगी भर अफसोस रहता है. इसके अलावा कई छात्र ऐसे होते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा देने की सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ और इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं. इसलिए ऐसा ना करें, क्योंकि किसी काम को जब तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं किया जाता है तब तक वह करना नामुमकिन लगता है और जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है. तो जो भी कार्य आप करें आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, और जैसे मैंने पहले कहा था कि उस काम में अपना 100% दें. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करें कि आप दिन भर पढ़ते रहें. आप दिन में 4 घंटा 6 घंटा जितना भी पढ़ें, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ें, अपना 100% उसमें दें. कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पढ़ रहे हैं और साथ में वो टीवी देखते हैं. व्हाट इज दिस? कहते हैं साहब अगर मैं टीवी देखता हूं या गाने सुनता हूं तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है. दैट इज रॉन्ग. एट ए टाइम यू शुड डू ओनली वन वर्क. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करें. जस्ट लीव अपार्ट एवरीथिंग. आपका जो टीवी है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन. आजकल मैं देखता हूँ बच्चे हर समय मोबाइल फ़ोन में अपना व्हाट्सअप में लगे रहते हैं अपना. पर ठीक है, आप व्हाट्सअप भी करिए, यू डू ईच एंड एवरीथिंग. आई एम नॉट सेइंग आप मत करिए, लेकिन जिस समय जो काम करना है उस समय वही काम आपको करना है. आप अपने मोबाइल के लिए कुछ समय दे दीजिए. एक दिन में 1 या 2 घंटा बहुत है. मैं देखता हूँ आज के बच्चे हर समय जेब में, अगर मोबाइल कहीं छूट गया तो छूट गया. भाई हम तो वो दिन हमें याद आते हैं कि हमारे पास आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं हुआ करता था. एक बार फ़ोन करने, अगर हमें नैनीताल से दिल्ली बात करनी होती तो हमें पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था. पोस्ट ऑफिस में एसटीडी कॉल लगानी पड़ती थी या लाइटनिंग कॉल लगानी पड़ती थी, तब जाके बात होती थी. तो वो भी दिन थे. तो आजकल के बच्चों को अगर वो मार्केट में भी जाएंगे, घर वाले पूछेंगे बेटा कहाँ पे है, व्हाट इज दिस? यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. सो पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, अपना खेल के समय अपना खेलें. तो कहने का मतलब यह है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है. फिलहाल हम सभी को काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए. तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की एक नई ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं. हमने बचपन में कई कहानियाँ सुनी हैं.
वो एक चींटी की कहानी हुआ करती थी। वो चींटी है, बार बार चढ़ती है फिर गिरती है, वो सब इसमें जानते हैं। मैं ये कहानी को नहीं दोहराना चाह रहा हूँ। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नीचे गिरते हैं कोई बात नहीं, फिर बढ़ें और एक समय आप अपनी गोल को हासिल करेंगे। आपने कभी बहती हुई नदी को देखा है? बड़ी तेजी के साथ बहती है और अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है और उसका लक्ष्य है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल है सागर में विलय होना। और इस नदी के रास्ते में हजारों बाधाएं आती हैं, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते हुए वो अपने गंतव्य स्थान, अपने गोल तक पहुंचती है। अगर मान लिया नदी बीच में बहना बंद कर दे तो क्या होगा? तो इसी तरह से हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य, गोल in your life, that is very, very important. Now, if I ask you, what is your goal in your life? तो इसमें से जितने विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी जो सुन रहे हैं मेरे को, कुछ का तो लक्ष्य होगा। मैं ये नहीं कहता कि सबका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 50% विद्यार्थी जो मुझे आज सुन रहा है, उनका अभी तक उनका कोई लक्ष्य नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, फादर ने कहा कि 10th कर ले, फिर 12th करके फिर फादर ने कहा चलो बेटा BSc कर ले, या फादर ने नहीं तो उनका जो बच्चे का फ्रेंड है, बेटा उसने पूछा आप तुम क्या कर रहे हो? फ्रेंड ने कहा मुझे BSc PCM करना है, तो ठीक है PCM कर ले। दूसरे ने कहा मुझे ये करना है, वो कर ले। तो जो आपका अपना कुछ नहीं है, कुछ बच्चों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का अपना नहीं है, वो जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या जो उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या है? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? दैट यू हैव टू डिसाइड। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट साइंस में ही हो, कोई ज़रूरी नहीं, या कोई इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं आपका इंटरेस्ट आर्ट में ही हो। जिस विषय में, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप अपनी महारत हासिल करिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें समय जो है, हम समय की बात कर रहे थे, नदी की बात कर रहे थे, जो हमारा टाइम है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ मनी। आप ये शब्द को आज आप गांठ पाड़ लीजिए, टाइम इज़ मनी। और टाइम ऐसे बीतता है आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता है कि आज आप यहाँ पर बैठे हैं, 12 पास करके आप आए हैं, 12 पास कर लिया आपने, आपकी जो एज है 17, 18, 19 के आसपास होगी। आपको पता लगा नहीं कब 18 ईयर्स हो गए हैं, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन पहुँच रहे हैं वो कब उनका अंडर ग्रेजुएट हुआ, पता लगा नहीं आपको। समय, टाइम बीतता है, लगता है कल की बात है। सो समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा, जो एयर है, हवा हमेशा चलती रहती है, कभी इसकी रफ्तार कम होती है, कभी तेज होती है, लेकिन रुकती नहीं है। इट नेवर स्टॉप्स। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, लेकिन सब गतिमान है, कोई नहीं रुकता है, सब चलते रहते हैं। सो जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यू डोंट हैव टू स्टॉप। तो यदि आपको अपने गोल को प्राप्त करना है या अपना गोल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही, इसी क्षण, जब ये आपका प्रोग्राम आप मुझे सुन रहे हैं, इसी क्षण आप अपनी कमर कस लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि मुझे कभी रुकना नहीं है और मुझे अपना एक गोल तय करना है। आप अपने अंतरम की जो आवाज़ है उसको पहचानें कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, और फिर आप देखिए, अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया
और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान लिया, देन यू विल सी स्काई इज द वर्ल्ड। देखिए, उदाहरण जो है आप देखें भरे पड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। आज से ही नहीं, बचपन से प्रभावित हूं। आप सभी को अवगत है कि 39 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम किए वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए। और विवेकानंद जी ने सबसे बड़ी बात ये कही थी, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बात और कही थी, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन ए डे, अदरवाइज you miss meeting an excellent person in the world। कितनी बड़ी बात कही है। You are one of the excellent person in the world। दिन में एक बार अपने आप से बात करिए। अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है, मैं तो रोज करता हूं, शाम को सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप ये देखिए आज आपने पूरे दिन में क्या किया। टॉक टू योरसेल्फ, हु आर यू, आप कौन हैं, आपका क्या गोल है, आपका क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपने क्या किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पल, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। आपने एक गोल सेट किया, ठीक है, आज आफ्टर ग्रेजुएशन आई वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, आपको पीसीएस आईएएस में ज्वाइन करना है, तो वो ऐसे तो आपको ज्वाइन नहीं कर सकते ना। अगर आज आपने गोल तय किया है तो डेली आज आप शाम को आप एक डायरी लिखिए कि आज आप आईएएस बनने के लिए आज आपने क्या प्रयत्न किया, उसके नेक्स्ट डे आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आपने क्या, जस्ट गो ऑन राइटिंग इट, देन यू विल सी डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। और एक बात स्वामी जी ने और कही है, ऑल पावर्स आर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात कही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आज आप घर जाएंगे, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आप घर जाएंगे, आप इस दोबारा सोचिए, कितनी बड़ी बात कही है। सारी पावर्स आपके अंदर हैं, सारी पावर्स हैं, लेकिन वी डोंट नो। उन पावर्स को आप जगाइए और यू कैन डू एनीथिंग। और एक बात और उन्होंने कही है, कुछ बातें मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप पढ़िए, उनका लिटरेचर पढ़िए स्वामी जी का। अगर आपको कुछ अपने कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन होता है, आप पढ़िए, सारे आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। स्वामी जी पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। यहाँ मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन सारे इसमें बहुत बड़ी चीज़ें कही गई हैं। एक बात कही है, बिलीव इन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल बी इन योर फीट। अपने आप में विश्वास करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में एक बात उनकी और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो उन्होंने कही है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आज से 5 साल, 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको जो बनना है, आप ही उसके क्रिएटर हो। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आप आज के बाद, आज
4 साल या 5 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 लाख का प्लेसमेंट मिले या 15 लाख का या 20 लाख का या वट एवर इट इज़, 50 लाख का प्लेसमेंट, वट एवर यू कैन गेट इवन ए प्लेसमेंट ऑफ करोड़ रुपीज़। हमारे यहाँ पर कई एलुमनाई हैं, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। If you talk about the placement of the Kumaon University, we have got very good placement. We are having a placement set also. So you are the creator of your own destiny. आप आज डिसाइड कर लीजिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपको क्या पैकेज चाहिए। यू डिसाइड योरसेल्फ। लोग कहते हैं कि साहब नौकरी की कमी है, मैं कहता हूँ कि आज तो नौकरियाँ ज़्यादा हैं। हम लोगों के ज़माने में कमी हुआ करती थी, लेकिन आज तो नौकरियाँ बहुत हैं। लेकिन वो नौकरी को पाने वाले चाहिए, नौकरियाँ तो बहुत हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब हैं। एक छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट को उन्होंने अपना धर्म मान लिया था और कहीं वो बड़े बड़े संस्थानों में कोई ऐसा शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका एक पैशन था कि मुझे क्रिकेटर बनना है और उनको आज भारत रत्न है हमारे। अब उन्होंने सोचा कि मुझे खेल के जगत में अपना नाम कमाना, तो उन्होंने वो काम किया। कई लोग हैं, रामानुज जी हैं, गणित के विद्वान हैं, कितना बड़ा काम किया। सो व्हाट आई वांट टू से दैट वी मस्ट कंट्रीब्यूट टू द नेशन अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी एंड हार्ड वर्क। तो नेशन को आप कंट्रीब्यूट तभी करेंगे जब आप आपका एक गोल होगा और उस गोल को आप अचीव करेंगे। सबसे पहले आप अपना उद्धार करें, अपने परिवार का उद्धार करें, फिर आप अपने गांव का उद्धार करें, फिर डिस्ट्रिक्ट का उद्धार करें, फिर स्टेट का उद्धार करें, फिर आप पूरे नेशन का उद्धार करें। और नेशन का उद्धार करने के बाद आप पूरा वर्ल्ड को देखें। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जो आप यहां पर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह शिक्षा जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस शिक्षा में बहुत जरूरी है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम खुद एक्सपेरिमेंट करें। भाई ये जरूरी नहीं कि जो फिजिक्स का विद्यार्थी, केमिस्ट्री का विद्यार्थी वही हैंड्स ऑन करें, और आर्ट्स वाले भी करते हैं, वहां भी हैंड्स ऑन होते हैं। अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को समाज की जरूरतों से जोड़ें, तभी कुछ नया कर पाएंगे। आप हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब देखिए, एक छोटे से गांव के स्कूल में उन्होंने पढ़ा और उसके बाद भारत के स्पेस मिशन में अग्रणी रहे और हमारे राष्ट्रपति रहे। आप एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करिए, न्यूटन की बात करिए, सीवी रमन की बात करिए, ये सभी ने जो है खुद करके सीखा और दुनिया को वो आविष्कार दिए जो अभूतपूर्व हैं। तो मेरा कहना यह है, शिक्षा को व्यावहारिकता के साथ जोड़ना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय में यह प्रयास रहता है और रहेगा कि हम शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाएं और विद्यार्थियों को वो सब अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जो इसके लिए जरूरी हैं। अभी कुछ ही माह पूर्व हमने कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक कॉम्पिटिटिव सेल बनाया और इसका एक वेबसाइट भी है। ये जो हमारा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, इसी से लिंक भी है, आप जरूर चेक करिएगा। कॉम्पिटिटिव सेल, इस कॉम्पिटिटिव सेल का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव सेल? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि आप हमारे विद्यार्थी इस वेबसाइट को विजिट करें और इसमें आपको समय समय पर जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसकी आपको सूचना दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम जो हमारे यहाँ पर अध्यापक हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो जिस एरिया में एक्सपर्ट है, सपोज मान लिया कोई हिस्ट्री में एक्सपर्ट है या समाजशास्त्र में एक्सपर्ट है या साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनसे हम
रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि साहब जो कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो पढ़ाए जाते, जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी तैयारी हम अपने बच्चों को इस वेबसाइट के माध्यम से कराएं। इट इज़ टोटली ऑनलाइन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। लेकिन आप लोग तैयार तो होइए। तो ऑलरेडी आप ये वेबसाइट डेवलप कर दी गई है और आप इसको देखें और इसमें विजिट करें। कॉम्पिटिटिव से दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ राइट योर CV। अब बहुत से बच्चे हैं दे डोंट नो हाउ टू राइट CV। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना CV लिखें, कुछ बच्चे एक्सपर्ट भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर 60% बच्चे दे डोंट नो हाउ टू राइट CV लिख गए, ठीक है, नाम लिख देंगे, पता लिख, दैट्स ऑल। लेकिन इट मस्ट बी एट्रैक्टिव CV, ऐसा लगे सामने पढ़ने वाले को पढ़ते ही आपकी काबिलियत पता लग जाए। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, दैट इज फर्स्ट थिंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो उसमें हाउ टू राइट CV, हाउ टू अपीयर इन द इंटरव्यू, GD ग्रुप डिस्कशन में कैसे आपको फेस करना है, ये सब चीज़ें हम लोग हमारी इस कॉम्पिटिटिव सेल हमारी ये काम करने जा रहा है। और दूसरा, हमने अभी हाल में ही यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। देखिए, अभी आप देखेंगे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक विजन था और हमारे शिक्षा मंत्री जो हायर एजुकेशन के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर पोखरियाल जी, और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, और हमारे धन सिंह रावत जी यहाँ के राज्य के शिक्षा मंत्री, इन लोगों का एक विजन था कि हम एक नई शिक्षा नीति लाएं। और ये शिक्षा नीति ऑलरेडी आ गई है, अब इस जल्दी ये लागू होने वाली है। और इस शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन और स्टार्टअप। इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो शिक्षा नीति के आने से पहले ही हमने यहाँ पर एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया गया है और एक बहुत सीनियर प्रोफेसर उसके डायरेक्टर बना दिए हैं। और इस सेंटर में कुछ काम ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हमने क्या किया था, हमने एक बिजनेस प्लान कंपटीशन कराया था बच्चों के लिए। उनसे कहा था कि आप एक अपना कोई बिजनेस मॉडल, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं फ्यूचर में, स्टार्टअप जो ऑलरेडी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे कहा कि आप एक प्रपोजल दीजिए। तो कंपटीशन किया हमने। तो उस कंपटीशन में करीब बहुत सारे बच्चों ने, करीब 2,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट करीब किया और उसमें से हमने 10 प्रपोजल छांटे और उसमें से उन बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, वी आर नर्चरिंग देम। और हमारी फैकल्टी मेंबर उनको गाइड कर रही है कि अगर आपको स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस प्लान, कोई बिजनेस करना है तो आप करिए। यानी यू कैन डू वाइल लर्न यू कैन अर्न ऑल्सो। पढ़ाई के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टार्टअप्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इनोवेशन, ये चीज़ें, इन पर हम यहाँ पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। और तीसरा, कुमाऊं विश्वविद्यालय में कोलैबोरेशन की बात है। कई हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अभी हाल ही में हमने किए हैं, कुछ नेशनल कोलैबोरेशन हमने किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए हम कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे और करते आ रहे हैं और भविष्य में करेंगे। उसमें स्टूडेंट सेमिनार, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिबेट कंपटीशन और राइटिंग कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें। और गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चर्स को हम लोग इनवाइट करेंगे। अभी तो ड्यू टू दिस कोरोना हम फिजिकली यहाँ पर नहीं बुला पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में कई हमने यहाँ पर वेबिनार किए। तो इसी तरह से हम अपने बच्चों के लिए, भाई आपके कुछ एक्सपर्ट, सपोज हम चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट IIT में है या कोई US में एक्सपर्ट हैं, वहाँ से उनको वहीं से ऑनलाइन वेबिनार कराएंगे आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोगों को भी आगे आना है। और यहाँ पर आप बच्चे देखेंगे कि हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय में डाइवर्सिटी है, करीब 20 स्टेट्स के बच्चे हैं। आप उनसे जब मिक्स होंगे, आपको अलग अलग स्टेट के बारे में पता लगेगा, उनकी भाषाएं, वहाँ पर उनका कल्चर क्या है, ये पता लगेगा। और यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने रिसर्च पर बहुत फोकस किया है। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स, दे आर वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, और उनका आप रिसर्च का काम देखिए, बहुत अच्छा काम रिसर्च में किया है। कई पेटेंट्स यहाँ पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने किए, पेटेंट्स, पब्लिकेशंस किए हैं।
कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप करते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के कई जर्नल्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स अलग अलग जर्नल निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक हिमालयन म्यूजियम हमारा है। और व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइब्रेरी, वी हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी हियर। हमारे कैंपसेस में अगर आप डीएसबी कैंपस की बात करें, वहाँ अलग लाइब्रेरी है, भीमताल में अलग लाइब्रेरी है, और यहाँ पर हमारे एक विश्वविद्यालय में एक अलग लाइब्रेरी है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेस विश्वविद्यालय में हैं, इट इज़ योर ड्यूटी टू यूटिलाइज देम। देखो, ये तो आपका हाथ पकड़ के आपको लाइब्रेरी नहीं ले जाएगा, आप जाइए लाइब्रेरी में। अगर आप देखते हैं कि कोई बुक आपको चाहिए, तो आप गिव रिक्वेशन टू योर कंसर्न फैकल्टी मेंबर। आपने पता है कि आपकी कोई लेट्स से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई अच्छे ऑथर की बुक आप चाहते हैं मंगाना, आप अपने क्लास के टीचर को दीजिए, अपने फैकल्टी को दीजिए, एचओडी को दीजिए, या सीधे लाइब्रेरियन को दीजिए, हम बुक को मंगाएंगे। लेकिन आप तो आगे आएँ, और जो फैकल्टी मेंबर्स हमारे रिसर्च करती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट भी अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, इनोवेशन इंक्यूबेशन की बात कर रहे हैं, तो नवाचार की बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी रिसर्च करना स्टार्ट करें। और मैं ये चाहूँगा कि जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है, तो कम से कम आप एक छोटा सा प्रपोजल लिख के दें, एक रिसर्च, छोटा सा रिसर्च अपना लिख के दें। मास्टर्स जो मास्टर्स लेवल है, पीजी लेवल में तो होता ही है, लेकिन यूजी में भी हम लोग स्टार्ट करें। और बच्चे अपने कुछ छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार करें, स्टूडेंट सेमिनार। यू विल नो हाउ टू स्पीक, कैसे पेपर प्रेजेंट किया जाता है, छोटे छोटे सेमिनार। हम ये नहीं करें बड़ा सेमिनार एकदम से करें। मान लिया आपका साइंस फैकल्टी है, उसके बच्चे ये कर लें, आर्ट्स फैकल्टी ये कर लें, कॉमर्स फैकल्टी ये कर रहे हैं, बच्चे अपने मिलके एक सेमिनार करें। कुछ क्लब्स, स्टूडेंट क्लब बनाइए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक डिबेट क्लब बनाइए, वहाँ टाइम टू टाइम डिबेट करिए। इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करें। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारी फैकल्टी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी यहाँ पर है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर प्लानिंग टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी। वी आर फॉर यू, स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एनएसएस, आप देखिए हमारे पास एनएसएस में हमारे राष्ट्रपति अवार्ड हमारी यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। एनसीसी हमारे पास है, स्पोर्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं। और हम इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए एंटी रैगिंग कमेटी हमारे पास यहाँ पर है। और आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, फेसबुक, अभी हमने कुछ महापूर्व भी अपने फेसबुक, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज है, उसमें जो टाइम टू टाइम हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहे हैं या जो चीज़ हुआ है, जो फ्यूचर में होना है, उनको आप वेबसाइट के माध्यम से और हमारे फेसबुक के माध्यम से आप उनको देखें। सो टाइम टू टाइम यू मस्ट विजिट अवर फेसबुक एंड वेबसाइट ऑल्सो। जब हम बात करते हैं अपने एलुमनाई की, आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के 10 लाख से अधिक एलुमनाई हैं, और देश विदेश में हमारे यहाँ के एलुमनाई हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, साइंटिस्ट देखें, इसरो में हमारे साइंटिस्ट हैं। अभी जो मंगलयान गया था, वहाँ पर एक उसमें जो उसका जो वो था, एक कोऑर्डिनेटर थे, वो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट थे, मेरे से एक साल जो सीनियर ही थे बल्कि। और अगर आप आईएएस की बात करें, सिविल सर्विसेज के दर्जनों क्या सैकड़ों आईएएस यहाँ के हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय निकले हैं। अगर हम पीसीएस ऑफिसर्स बात करें, सैकड़ों पीसीएस ऑफिसर्स, मतलब हजारों में होंगे। अगर आप बैंक ऑफिसर्स की बात करें या डिफेंस ऑफिसर्स की बात करें, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, तो हर एक क्षेत्र में आपको यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के एलुमनाई मिलेंगे, और बहुत सीनियर पोजीशन पे मिलेंगे। और अगर आप देखें आज की तारीख में, अगर आप देखें कि कुमाऊं में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके एक जो भरसार में यूनिवर्सिटी बनी है, उसके वाइस चांसलर हैं, वो भी हमारे एलुमनाई हैं। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर हैं, वो भी हमारे यहाँ के एलुमनाई हैं।
और अभी यहाँ पर आप देखिए हल्द्वानी में ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बीसी हैं, वो भी हमारे यहाँ के एलुमनाई हैं। और अब मैं खुद आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी यहीं का एलुमनस हूँ। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी सफलता के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप सिंसियर रहें, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो टाइम टेबल है, चाहे वो आपके कॉलेज का टाइम टेबल हो या आपका अपना पर्सनल टाइम टेबल हो, उसको फॉलो करें। आप अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाइए कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे कहने में यहाँ पर कोई हिचक नहीं है, कि कुछ बच्चे समझते हैं कि साहब अब हमने विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया है तो क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप कदापि ना सोचें। अगर आप नियमित क्लास नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एग्जाम में भी डिबार्ड किया जा सकता है। 75% attendance is mandatory to appear in the examination. Number 1, let me tell you clearly. एग्जाम देने के लिए 75% अटेंडेंस होना जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, नंबर 1। और नियमित रूप से आप क्लास करें। देखिए, हम ये 75 रूल जो लगा रहे हैं, ये इसलिए, ये तो खैर यूजीसी का रूल है ही है, और वो इसलिए भी है कि अगर आप ये सोचें कि साहब हम ऐसे ही पास हो, ठीक है, आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्लास में जो आपको बताया जाएगा वो आप खुद पढ़ के नहीं कर सकते हैं। जो क्लास में एक टीचर आपको बताता है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका जो ज्ञान है, वो अपना ज्ञान से जो आपको बता रहा है, वो आप किताब पढ़ने से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तो सभी प्राइवेट कर लेते हैं, फिर प्राइवेट कर लीजिए, फिर ज़रूरत क्या है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सो अपने दैट इज़ नियमित रूप से अपनी क्लासेस करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितनी भी सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज आपको दी जा रही हैं यहाँ पर, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, ये सब चीज़ें हैं, क्लब्स हैं, इनका आप भरपूर लाभ उठाएं और स्वयं के अनुभव पर विश्वास करें और विश्वविद्यालय के जो नियम हैं उनका पूर्णतः पालन करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नियम हम जल्दी ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जो यहाँ पर डूज एंड डोंट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी, दैट यू मस्ट फॉलो दोज। और आज एक संकल्प लें कि आपकी उपाधि के उपरांत, चाहे आप यूजी हो या पीजी हो, इसको ग्रहण करने के उपरांत आज आप संकल्प लें कि आपको क्या बनना है। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, वेदर यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट और वांट टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज or civil services or judicial services or any other services, you decide today and act accordingly. क्योंकि हर एक के रास्ते अलग अलग हैं। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो उसकी तैयारी उस तरह से करिए, अगर आपको सिविल सर्विसेज जाना है तो उस तरह से तैयारी करिए, अगर बैंकिंग में जाना है तो वैसे तैयारी करिए, अगर साइंटिस्ट बनना है या टीचर बनना है, प्रोफेसर कहीं बनना है, उस तरह से तैयारी करिए। तो दैट यू हैव टू डिसाइड टुडे। तो अंत में मैं पुनः एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वो आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको अपनी लाइफ का गोल, जो ध्येय है, उसको प्राप्त करना है। उन्होंने कहा है, टेक अप एन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave other idea alone. This is the way to success. मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।